Namaste students. Hope you all are fine. Today I am going to teach you the second part of class 7th geography lesson, water. If you missed to watch my previous episode, please do watch and then attend the session for ultimate clearance. Before moving the new subtopic, I would like to recap of that previous classes. We learned water cycle, water resources. So first I have to start from the water cycle. Chapter is water cycle. The last session I told you that water is constantly in move. पानी जो है कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो अपने आप में मोशन में रहता है. पानी अपने जो रूप है उसको चेंज भी करते रहते हैं. वो तीनों स्टेज में अपने रूप को चेंज करते हैं. वाटर साइकिल क्या है? जल चक्र, इन हिंदी जल चक्र. आई ऑलरेडी टॉट दिस पोर्शन. ओशन, वाटर बॉडीज, लैंड एंड एटमॉस्फेयर. सागर है, जल है, धरती और आकाश. जल चक्र कैसे बनते हैं? When water evaporate, okay, the sun, the ultimate source of heat and energy. Sun is the one and only the ultimate source of heat and energy. Sun heats the water evaporate. This evaporation process is the water change into water vapor. This is known as evaporation. Evaporation होकर ऊपर जाती है. Then cooling process, कंडेंसेशन होने के बाद में क्या होता है? फॉलिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लीट और स्नो. दिस सर्कल इज नोन एज वाटर साइकिल. क्लियर? द वाटर चेंज इनटू वेपर. दैट प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन. देन कूलिंग, कंडेंसेशन. Then this raining means precipitation in the form of snow, rain or sleet. This circle is known as water cycle. Clear? Next is distribution of water. I already taught you distribution of water. पानी का वितरण कैसा है? 97.3 ocean water. Then 2% ice cap. Distribution of water: 97.3 ocean water, 2% ice caps and 0.68 groundwater. Only 0.02%. Only 0.02% water is from other side, means atmosphere and other sides. इतनी जो पानी का जो 100% में सिर्फ 0.2% ही है आउटसाइड का. ओशन वाटर 97.3, देन आइस कैप 2% और 0.68 ग्राउंड वाटर है. इतनी वाटर आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जस्ट रिकैप है. इतनी होने के बाद में भी देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर. हमारे यहाँ पे पानी का अभाव है. पूरे प्रकृति में पानी का अभाव है, जबकि इतनी पानी इतना है. 97.3 ओशन, 2% आइस कैप्स, 0.68 ग्राउंड वाटर है. बट स्टिल देयर इज a scarcity of water. Why? Because of the salinity. This is not a new term for you. Salinity means the amount of salt in gram present in 1000 grams of water or 1 liter. आपको पता है कि डेड सी में सबसे ज़्यादा सॉल्ट है. 10 times saltier than the ओरिजिनल सी. 10 गुना ज़्यादा है. आम जो सागर है, आम समुद्र से, आम ओशन से 10 गुना ज़्यादा वहाँ पर नमकीन है. इसीलिए जो सलाइनिटी होने के कारण अर्थ में पानी का स्कैरसिटी है, यानी पानी का अभाव है. तब हमें क्या करना चाहिए? पानी का राइट वे में हमें यूज़ करना चाहिए. अगर आपने डेड सी सलाइनिटी का हाई में है, डेड सी आपने अगर 1 लीटर पानी को आप अगर बॉईल करते हैं तो आपको 250 ग्राम्स नमक मिलेगा.
अगर वही आपका हमारा यहाँ का अगर समुद्र का पानी को आप ले आते हैं, आप उसमें से आप उबालते हैं, पानी इवापोरेट हो जाने के बाद में सिर्फ आपको 25 to 28 ग्राम्स ही आपको उसमें से जो है सोडियम क्लोराइड मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl उसमें मिलेगा, 10 टाइम्स ग्रेटर देन नॉर्मल वाटर। डेड सी में जो सलाइनिटी या साल्टियर है वो 10 टाइम्स गुना ज़्यादा है अदर सी वाटर के और ओशन वाटर के तुलना में। क्लियर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जाएंगे सर्कुलेशन ऑफ ओशंस। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेशंस ऑफ ओशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। The first one is waves, the second one is tides, and the third one is current. The first one is waves, number 2 tides, number 3 current. These 3 are the movement या circulation, movements of ocean. The first one, the waves, the second one tide, and the third one ocean current. So waves are the rise and fall of water on the surface. Okay, अब इतने ही आपका काफ़ी है, the rise and fall of water on the surface of ocean. Surface of ocean. Tide, that's the second one. The rhythmic rise and fall of ocean water twice a day is called tide. The third one, ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. We already learned these 3 terms, waves, tides and ocean current. हम लोगों ने इन तीनों को सीखा, लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है अब इसमें देखिए। नंबर 1, waves, the rise and fall of water on the surface of ocean. Okay, the wind pull the land, these occur rise and fall. अब rise and fall है इसमें आपका waves में। अब देखिए what are the difference between the tide and the waves. The rhythmic rise and fall और twice a day. अब ये rhythmic होगा और दिन में कितनी बार होगा? Twice, यानी 2 बार होगा। The rhythmic rise and fall of ocean water twice a day is known as tide. इसमें 2 बार होगा। अब थर्ड वन देखिए करंट, अब डिफरेंट है, एंटरली डिफरेंट है। करंट स्ट्रीम्स में फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। आप ये जो है आपका डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। देन ये आपका वेव्स में 2 है, दिस इज द वेव्स, दिस एरिया इज नोन एज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ। ओके, देन tide, 2 types of tides, neap tide and spring tide. Then ocean current, warm current and cool current. Waves, the rise, crest and the fall, trough. 2 types of tides are there, neap tide and spring tide. Then currents, 2 types of currents are there, warm current and cold current. And I want to clear about the neap tide. I already said to you, neap tide, sun, earth, moon. When this type of location create at the time, neap tide form. जब इस तरह की परिस्थिति आती है, सूरज, अर्थ और मून आते हैं तो नीप टाइड होता है। ये सन, अर्थ और मून, सन भी अर्थ को अपना ग्रेविटिकल फोर्स से प्रेशर देता है और मून भी ग्रेविटिकल फोर्स से अपने आप को पुल करता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? नीप टाइड। नेक्स्ट स्प्रिंग, सन, मून, देन अर्थ, स्ट्रेट लाइन में होता है। सन अपना ग्रेविटिकल फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटिकल फोर्स से, मून भी अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पे एक बल्ज फॉर्म में समुद्र आ जाता है, तब यहाँ पे जो होगा आपका स्प्रिंग टाइड होगा। क्लियर? चलो, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेरेरियम। एक क्लोज्ड कंटेनर है
What is a partially closed container? Glass container for displaying plants, especially plants that have high humidity. High humidity वाले plants को इसको घर के अंदर में रखने के लिए artificially आपको रखने के लिए है, आप एक क्लोज कंटेनर लोगे, ये पार्शली कवर्ड होगा, इसके अंदर में पौधा को रखा जाता है। यह एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वे है कि हम कैसे ऐसे पौधे को हम घर के अंदर में रखेंगे। नाउ वी विल लर्न more about the tsunami. टी सुनामी, जब छोटे थे ना बच्चे तो बोलेंगे टी सुनामी, टी इज साइलेंट। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। अब ऐसा हार्बर वेव्स क्यों आया? क्योंकि जब भी सुनामी आता है तो हार्बर जो भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सुनामी मीन्स हार्बर वेव्स। अब आपको पता होगा कि सुनामी कब आया था, आपके नॉलेज में आपको नहीं, आपको पता है, आपने सुने होंगे, लेकिन आप उस वक्त में जन्म नहीं लिए, क्योंकि 2004 में आए। 2004 में अभी वही बच्चे पढ़ते हैं जो कॉलेज वगैरह में हैं, तो 2004 में आप जन्मे नहीं है, लेकिन आपने अपने पेरेंट्स से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से आपने सुना होगा कि 26 दिसंबर, मैं मिटा नहीं रही हूँ, रिकैप के लिए सब ब्लैक बोर्ड में ही रहेगा, 26 दिसंबर 2004। तो अब क्या हुआ, एपी सेंटर था वेस्टर्न सुमात्रा, वहाँ से जितने भी एरियाज था, कंप्लीटली साउथ एशियाज था, इंडिया, श्रीलंका, सब इफेक्ट हुआ। तब एक इसमें आपका एक मिराकल्स क्या हुआ बोलने से मैं आपको इसीलिए ये अवेयरनेस के लिए ये टॉपिक आपको उठाई। ऑलरेडी आप जानते हैं कि जब सुनामी आया था तब जो जानवर को, जो एनिमल्स का जो डेथ रेट था वो बहुत ही लेस डेथ रेट था। वो क्यों? ह्यूमन बींग्स बहुत लोगों ने मरा, लेकिन एनिमल्स का जो डेथ रेट था वो बहुत ही कम था। उसका ये वजह यह था कि अर्थ के साथ में डायरेक्टली कांटेक्ट है एनिमल्स। आप बोलेंगे हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं, ऐसी बात नहीं। हम घर में रहते हैं, कभी मचान के घर में, कभी हार्ड घर में, पक्का घर में, आपका स्लैब होगा, स्लैब के ऊपर हम रहते हैं। तो जो डायरेक्टली रहते हैं, जो अर्थक्वेक को जो फील कर पाते हैं, उसे आभास होगा कि अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में या फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में अर्थ के अंदर में कुछ होने वाला या समुद्र में कुछ होने वाला है। तो वो जो मोशन है वो फील करने का कैपेसिटी एनिमल्स में है। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी सी शोर में हाथी और कार्निकोबार की तरफ में सूअर, गाय वगैरह बहुत कम मरे हैं। और आप क्या सिम्टम्स होगा सुनामी आने का? सबसे बड़ा सिम्टम्स होगा कि जितना भी ओशन वाटर है वो सब पहले पीछे को चला जाएगा। जितना पीछे से गया उतनी ही फोर्स से 700 किलोमीटर पर आवर्स, सोच के देखिए 700 किलोमीटर पर आवर्स। हम जब गाड़ी में जाते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर्स होने से स्पीड हो जाती है, तो उतना ही स्पीड से वो कम बैक किया, उतना ही फोर्स से 150 मीटर हाइट में वो आकर मारा और सारे जितने भी सी शोर में जो व्यूज़ देखने के लिए ऑब्जर्व आए थे सबको बहा कर लेके गया। तो अगर इन फ्यूचर में भी ऐसे आता है, समुद्र अंदर को चला जाता है, तो आप ये नहीं सोचना है कि हाँ चलो हम लोग और समुद्र के पास जाएंगे, वो खतरे की निशानी है। तो आपको बचना है। इसीलिए एक चेतावनी है, जब सागर का जल बैकवर्ड हो जाता है तो आपको सतर्क रहना है कि हाँ कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होने वाला है। कुछ लोगों ने जब ऐसा हुआ तो अपना प्रॉपर्टी वगैरह, पेपर वगैरह लेने के लिए गए तो उसे भी बहा कर लेके गया। तब नेचुरल कैलामिटीज़ आता है तो किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है बच्चों। तो हमें अपना प्रिकॉशन लेना है कि हम उससे कैसे बचेंगे। तो आप भी अपने इस तरह का जो सिम्टम्स आता है, कोई भी अनइवन जो भी इंसिडेंट होता है तो ज़रूर समझ लेना है कि ज़रूर नेचर ने कुछ खेल उसमें खेला है। ओके, चलो लेट डू सम एक्सरसाइज। हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया इसमें, अभी हम रिकैप करने के लिए ब्लैक बोर्ड में सब छोड़ी हुई है। आपको जस्ट रिकैप करने के लिए हमने सब छोड़ दिया है। आपका वेव्स था, राइज को क्रस्ट, फॉल को ट्रफ, टाइड्स था, 2 टाइप्स ऑफ टाइड्स, नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स, करंट, वार्म करंट, अनकूल करंट। उसके बाद में आपने टेरेरियम, उसका भी हमने डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। कुछ भी हमने मिठाई नहीं, ताकि आपको ये रिकॉल होते रहे जब क्वेश्चन आंसर करेगा। उसके बाद 24 दिसंबर 2004 सुनामी आई थी। ये मोस्टली इतना, और इसमें वाटर साइकिल का है। पिछला सेशन में भी मैंने बहुत सा चीज़ को दोहराया इसमें, ताकि आप याद रखें। ऐसा नहीं है कि बेकार, क्योंकि आप घर में बैठे हैं,
क्लास 7th के बच्चे हैं तो रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वाटर साइकिल पढ़ा। वाटर साइकिल में इवापोरेशन, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन। देन कूलिंग डाउन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, कंडेंसेशन होता है। देन प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड स्लीट। SLEET आपको यू का तरह दिखा होगा, SLEET स्लीट होने से ओला, तो उसमें आया। उसके बाद में आपका कांस्टेंट मूवमेंट, करंट, देन रिदमिक मूवमेंट, टाइड, ये सब आपको सीखा। सेकंड क्या था, मूवमेंट ऑफ ओशंस में ये तीनों आ गया। फिर आपका अर्थक्वेक, इसमें इतना टॉपिक है आपको जानने के लिए, लेकिन आपका अपना एक अवेयरनेस के लिए आपको कुछ करना है कि ओशन वाटर को आपको सेफ रखना है, वो ख़राब होने से बचाना है, उसमें गंदगी डालना नहीं, आप नहीं डालेंगे किसी को डालने ही नहीं देंगे, और जो नल है उसमें से बहता पानी को आप रोकेंगे। तो इससे जो भी अवेयरनेस होगा आप अपने आप में डेवलप करेंगे और दूसरे को भी हेल्प करेंगे। और एक बात छूट गया था, मैं आपको बताई थी, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम चार्ट बनाते हैं कैसे उसको वाटर को प्रिजर्व करेंगे, हम कैसे उसको अनटाइडी पोल्यूशन से बचाएंगे, वो सारे हम स्कूल में भी सीखते हैं। तो आपको अवेयरनेस होगा। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर में। आप लोग रेडी है? आपका टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है अभी मैं वही सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से बाद में आपको अपना टीचर्स भी देंगे। अभी आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस को देखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर रिटन इन द पेज नंबर 37. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज precipitation? Precipitation means anything falling from the sky which includes rain, snow, hail, etc. on the surface of earth. Small answer. Now come to the second questions. What is water cycle? What is water cycle? The process by which water continuously changes its forms and circulates between ocean, atmosphere and land is known as water cycle. The next question. What are the factors affecting the height of the waves? Answer. The following factors are affecting the height of the waves. Number 1, speed of wind. Number 2, earthquake. Number 3, volcanic eruption. And number 4, underwater landslide. The next question, which factors affect the movement of ocean water? The answer is temperature, warm and cold current, wind, gravitational pull of the sun and the moon. Next question is, what are tides and how are they caused? The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. It is high tide when water covers much of the shores by rising to its highest level. It is low tide when water falls to the lowest level and recedes from the shore. Now come to the next questions. What are ocean currents? Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions. The ocean currents may be warm or cold. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. The cold current carry water from the polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. The Labrador Ocean current is the cold current, while the Gulf Stream is the warm current. The ocean current influences the temperature condition of the area. Now come to the small question, question number 3. Tick the correct answer. It is very easy for you. The process by which water continuously changes its form and circulate between ocean, atmosphere and land. Yes, absolutely, your answer is correct. Water cycle. The question number 2, third ka 2. Generally, the warm ocean currents originated near, option है आपका poles, equator, none of these, the answer is equator. Then the third one, the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called, number A, tide, number B, current, ocean current, number 3, waves. The correct answer is ocean current. Now we will move to the give reason, question number 2, page number 37. Give reason why ocean water is salty. Ocean water is salty, आपको पता है कि ocean water salty है, उसका reason आप अपने आप से लिखेंगे.
Ocean water is salty because it contains a large amount of salt dissolved in it. The salt present in the ocean water is mostly sodium chloride or the common salt we eat. That is only the answer. Now come to the second questions. The quality of water is deteriorating. The answer is deforestation, throwing of garbage and other waste in water bodies, chemical released from industries, and increased uses of fertilizers and pesticides. Then the fourth question is very easy for you and it is written in a sequence way. Match the following. Caspian Sea, the largest lake, tide, periodic rise and fall of water, tsunami, strong seismic waves, then ocean currents, streams of water moving in definite path. Okay students, we learn what is water cycle, what are the different movements of oceans, and when we celebrate International Water Day and about tsunami, we learn these all things. हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया पानी के बारे में, लेकिन पानी को आप अपने लाइफ में भी कोरिलेट करेंगे. इसमें आपका बुक्स में नहीं है कि हमें जीने के लिए पानी चाहिए. हमारा बॉडी भी कम्प्लीटली पानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, मोर देन 70% है. हमारे आँख को रोटेट करने के लिए पानी चाहिए. हमारे नाक में लिक्विड होता है, म्यूकस होता है, उसमें जल चाहिए. हम जब बात करते हैं तो हमारा टंग को ट्विस्ट होने के लिए पानी चाहिए, उसमें भी सलाइवा है, पानी चाहिए. हमारे जो जॉइंट्स है, एल्बो है, नीस है, ये सब रोटेट करने के लिए जल चाहिए. वी नीड वाटर. तो एक ही नारा, जल ही जीवन है. वाटर इज़ लाइफ. ओके, बी सेफ. थैंक यू.